All right. Good evening, everybody. Welcome. Sundays with Shankar and Vinita. We're going to talk about today very important topic. I hope you're enjoying your Sunday. तो फर्स्ट ऑफ ऑल संडे की शाम आप सबको बहुत मुबारक। आई होप कि आप लोगों ने इतवार की चाय पी ली होगी और कुछ ही देर में डिनर का टाइम होने वाला है। एनीवे, तो आज का टॉपिक जिसमें मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज अबाउट स्पेशली आईटी इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ उस इंडस्ट्री के से रिलेटेड टॉपिक है। और मैंने एक स्टडी पढ़ी लास्ट वीक और वो स्टडी मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसके रिजल्ट्स भी जो उन्होंने स्टडी पढ़ी जो रिसर्च किया उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई डोंट disagree with those study point because I see every second person, every or not every second, every person is impacted in the industry. Okay, so I'll move to the topic today, and then this topic is all about, you know, where is this gone? I don't know where is that window gone. Okay, did I close it? I think yes. Let me pull out. I have put it everything in it together and let me share. Not this one. I am somehow not ready, but मैं सोचता हूँ कि मैं रेडी हूँ लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है. Okay, so this study is called a very important is called silent crisis in tech. You know ये बहुत बड़ा silent crisis है tech industry में. You know, and this is the research done by University of Hyderabad कि millions of IT professional are carrying this hidden health risk. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट कि इसका कोई सिम्टम्स नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट गेट सिम्टम लाइक कोई पेन हो रहा है, लाइक यू नो किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स. डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं लेकिन वो थोड़े से बड़े हैं. बट अगर ऐसा भी मोर देन 70% केसेस में देखा गया देर आर नो सिम्टम्स बट दिस साइलेंट क्राइसिस इज इनसाइड हेल्थ, राइट? And this millions of IT professional which are there in India, in Hyderabad, Pune, Bangalore, Gurgaon, right? You will find this very common, and this is called, this is a very alarming situation also. If you see here, the 84%, total 84% people of IT industry have shown this fatty liver issues. And this alarming silent crisis is called fatty liver. आप सोच सकते हो 100 में से 84 लोगों को, एवरी 100 में 84 जिनको फैटी लीवर है. इसका ये मतलब नहीं है ये सारे लोग दे टेक अल्कोहल, राइट? Lot of people do not take alcohol but still they have fatty liver issues. 71% out of this 84 are clinically obese. वो तो बड़ा कॉमन है, आपको दिखता होगा, राइट? ओबीज बहुत सारे लोग हैं, तो ये डेटा काफी कुछ मैट करता है. और इसमें से 100 जिस 84 लोगों में से 50 लोगों को छोड़ दें तो 34% पीपल हैव और हैड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल, right? And this is the data which is only for IT professional. And if you go and look at other professionals, this will be more or less same, correct? But today I'm only focusing, this talk is only about IT professionals. And IT professional is so called, they're making a lot of money. They are the highest income bracket of the India. They are the creamy layer of India, earning population, but at the same time, they are losing their health, right? And this is one of them. What happens? You know,
ये अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 70% केसेस में तो पता ही नहीं चलता है कि देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ फैटी लीवर। मतलब कोई पेन नहीं होगा आपको कि यहाँ पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो गई है, राइट? इट्स जस्ट इनसाइड थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? सो होता क्या है, द फैट accumulation on the liver cell, right? Slowly fat, it starts accumulating, and the slowly the cells getting, मतलब आप समझ लीजिए फैट accumulate हो रहा है और लीवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन आने आने लगती है, राइट? सेल्स गेट इन्फ्लेम्ड। अब जब ये धीरे धीरे शुरू होता है तो फाइब्रोसिस शुरू होता है, फिर सिरोसिस शुरू होता है और लिवर कैंसर। बट उसके बीच में क्या होता है, जैसे जैसे लिवर इन्फ्लेमेशन होता है, फैटी लिवर बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। दैट्स व्हाई यू डेवलप इंटरमीडिएट such health situation called diabetes, blood pressure and cholesterol. It's all because the liver is inflamed. Fibrosis and cirrhosis is the almost last stage of the liver का प्रॉब्लम, बट उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, करेक्ट? अब इसका रीजन क्या हो सकता है? कुछ रीजन है, कुछ हिंट है, कुछ रूटीन है, कुछ रेड फ्लैग है। क्या आप 8 घंटे से ज्यादा एक ही जगह पर बैठे रहते हो? यस, आईटी प्रोफेशनल के बहुत कॉमन, 8 क्या 12 आवर्स की बात हो जाती है, राइट? करेक्ट। क्या रेगुलर स्लीपिंग आपका लेस देन 6 आवर्स अ नाइट है? वेरी कॉमन। रात में 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं और सोचते हैं कि हमें 6 घंटे की नींद हो गई, इट्स ओके। या फिर दे ट्राई टू फिनिश और दे ट्राई टू फिनिश देयर स्लीप ऑन द वीकेंड्स, करेक्ट? दैट्स अ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कितना शुगर और सोडा, शुगरी बेवरेजेस मतलब किसी भी तरह के जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ऑल nowadays, so many soft drinks are available. And let me warn you guys, even if you think that it is a healthy drink, please read the label, right? If you read the label, then you will understand how much healthy that drink is. Lot of times we drink that so-called healthy drink, but actually it is not healthy. And you can easily find out whether it is healthy or not healthy. Probably I'll do some session sometime, choosing the right or taking the right beverages. So let me tell you, in the market, except the buttermilk, I have not seen any beverages which are healthy, right? So if you are drinking frequently, I have seen, I have seen people, eating one beverages and it is written called, a coconut drink, जिसमें अगर आप देखोगे इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोकोनट है या फिर कुछ और ही कहानी है, राइट? तो प्लीज वॉच आउट, प्लीज बी अवेयर कि आप क्या पी रहे हैं। अंधे मत बनिए कि इसमें ये लिखा है तो हेल्दी होगा, पढ़िए उसको ध्यान से, राइट? फिर लास्ट पॉइंट, अगर आपका वेस्ट 90 सेंटीमीटर से और वुमेन 80 सेंटीमीटर से है तो ये आपके रूटीन के रेड फ्लैग हैं। इसका मतलब ये है कि योर liver can be fatty, correct? So now next, what should we do? The number one thing is, lot of times people do not do liver function test, correct? Even though people do the liver function test, some you will see the liver is, the SGOT, SGPT, everything is coming normal, but the best way to do the abdominal scan, राइट? आप स्कैन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें आपको पता चलेगा कि लिवर फैटी है कि नहीं है। पहले लिवर फैटी होता है, ब्लड पैरामीटर्स ठीक होते हैं, उसके बाद जाके फिर ब्लड पैरामीटर SGPT SGOT गड़बड़ होने लगते हैं। तो अगर आपको रियली में टेस्ट कराना है कि मेरा लिवर फैटी है कि नहीं है, सबसे पहला है कि आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं। और ये मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट मैंने बताया हुआ है, जो मेरी टेस्ट की सीरीज थी जिसमें मैंने बताया था कि कितने कौन से टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट, लिवर फंक्शन 10 प्लस एब्डोमिनल स्कैन और अल्ट्रासाउंड, जिससे ये पता चलेगा, राइट? ये सबसे पहले कराना है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली सबको पता है, नथिंग ग्रेट साइंस आई एम टेलिंग, कट रिफाइंड कार्ब एंड रिड्यूस एक्सेस शुगर इनटेक।
अब ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, कट रिफाइंड कार्ब, लेकिन कितने हम में से कितने कट कर पाते हैं या हटा पाते हैं? या शुगर, एक्सेस एक्सेस शुगर, मैं तो शुगर लेता ही नहीं हूँ, लेकिन बिस्किट खा रहे हैं, राइट, नमकीन बिस्किट भी खा रहे हैं, दालमोट खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, सुहाल खा रहे हैं, यू नो कुछ भी मैदे की बनी हुई चीज खा रहे हैं, तो वो तो रिफाइंड कार्ब ही में ही जाएगा और वो शुगर ही काउंट होगा, राइट। तो यू हैव टू वॉच आउट वेरी क्लियरली कि क्या आप खा रहे हैं, राइट। इन बिटवीन आप में से अगर किसी का फैटी लिवर है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं फैटी लिवर, और आई विल talk to you and help you, and probably we can connect to see how can I help you. Make every hour as a एवरी, मतलब मूव एवरी आवर, हर घंटे में मूव करना है, मतलब आप हर एक घंटे में आपको खड़े होना है और 1-2 मिनट की वॉक करनी है। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट गेट अप एंड स्टैंड एंड देन वर्क। वर्क मीन्स खड़े हो गए, इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी स्टैंडिंग टेबल एंड चेयर टेबल्स आ गई हैं आईटी इंडस्ट्री में, राइट। स्टैंडिंग एंड वर्क, स्टैंड एंड वर्क, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ स्टैंड एंड वर्क you are actually using your little bit muscle and you are doing a bit of neat exercises जिसमें movement में little bit movement। अगर आप केवल बैठे हुए हैं तो जस्ट उठिए, 10-12-15 सेकंड के लिए भी अगर आप वॉक करते हैं उस जगह खड़े होके, या सोलेस मसल एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, पैरों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, दैट विल गिव यू अ गुड एडवांटेज। तो लेकिन करना क्या है, एवरी आवर में मूव करना है, करेक्ट। इट्स नॉट दैट 4 घंटे बाद याद आया, नहीं, हर एक घंटे बाद आपको, या अगर आप अभी 0 है तो स्टार्ट डूइंग इन एवरी 2 आवर्स, वंस एवरी 2 आवर्स में आपको पता है क्या करना है, देन स्टार्ट डूइंग इन एवरी 1 आवर, करेक्ट। दैट्स अबाउट मूवमेंट एंड दिस इज इन एडिशन टू योर एवरीडे एक्सरसाइज। ये वो नहीं, ये इसका ये पार्ट नहीं होना चाहिए कि मैं तो सुबह 1 घंटा जिम चला जाता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, रात को वॉक कर लेता हूँ। डू यू थिंक दैट इज ओके? नो, दैट इज नॉट ओके। एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ जिम गोअर्स, जो जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और उनका फैटी लीवर होता है और उनके कोलेस्ट्रॉल्स बड़े होते हैं। तो गोइंग टू जिम डजंट गिव यू अ सोल्यूशन टू योर एक्सेस वेट और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओके। दूसरा है, आपको अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। हर खाने में कुछ ना कुछ ज्यादा फाइबर, और सबसे आसान तरीका है फाइबर ऐड करने का, सलाद। खाने में अगर हम सलाद ऐड करते हैं 25%, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। दैट्स द इजीएस्ट वे टू ऐड फाइबर। कितने लोग खाते हैं सलाद? वेरी रेयर, राइट। और प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? चिकन वाला नहीं, जिसमें फैट फ्री में मिलता है, राइट। इट शुड बी गुड प्रोटीन इनटेक कमिंग फ्रॉम गुड सोर्सेस लाइक दाल, और चने की दाल हो गई। तो अब आप दाल कितना खा, अगर आप आज से दाल 1 कटोरी खा रहे थे तो आपको यू हैव टू इंक्रीज टू 2 बाउल, राइट। सो दैट्स हाउ यू टू इंक्रीज द प्रोटीन। एंड ऑब्वियसली लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। आपको सही टाइम पे बेड पे जाना है और सही टाइम पे उठना है, राइट। मैंने ये देखा है कि पीपल हेल्थ की वैल्यू कब करते हैं, जब वो उसको लॉस कर देते हैं, जब वो खो चुके होते हैं, या खोने के बारे, मतलब आज आप देखोगे बहुत सारे लोगों का फैटी लिवर होगा, बहुत सारे डायबिटिक होंगे, बहुत सारों का, लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेस वेट, बट दे आर नॉट रियली कॉशियस एक्शन, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी हेल्थ में। क्यों? वो बाकी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, दे विल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन क्लोथ, इन्वेस्ट इन फोन। आई मीन फोन के लिए तो आप देखोगे ना, 1-1 लाख रुपए के फोन बिक रहे हैं और लाइन लगी है। उसमें से अगर कोई कहे कि भाई आप 1 लाख का फोन ले रहे हो, जरा इसमें से 10,000 रुपये अपनी हेल्थ में लगा दो, वो भी 3-4 महीने के लिए, चलो पर मंथ 3-4 हज़ार रुपए भी आप अपनी हेल्थ में लगा दो, नो पीपल विल आस्क 100 क्वेश्चन, क्यों, क्या क्या जरूर, अरे उसी के फायदे के लिए बात हो रही, करेक्ट। लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट। और कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है, जो मैंने टेस्ट में भी, जिस समय मैंने सारे ब्लड टेस्ट बताए थे उस समय भी लोगों का मैंने आपको ये माइंडसेट बताया था, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि अरे ये तो आजकल बड़ा कॉमन है, ये तो सबको होता है, तो फिर मुझे भी हो गया तो व्हाट इज अ बिग प्रॉब्लम, करेक्ट। इफ दैट इज द माइंडसेट, देन यू आर नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट।
ignoring will always lose them, and putting a cautious step will help you, right? Obviously prevention, as I said, is always easier than recovery. और जब आपको रिकवरी करनी होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर प्रिवेंट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्या करेंगे? सबसे पहले अपना लिवर स्क्रीनिंग, LFT, एब्डोमिनल स्कैन फिक्स करेंगे, और ट्राई टू फाइंड आउट, पता करेंगे कि मेरा फैटी लीवर है कि नहीं है, और अगर है, और एक बात मैं बता दूं, फैटी लीवर जो है वो स्टेज नंबर 1 और साइकिल नंबर 1 और पहला कदम है आपकी हेल्थ को डिटरोट करने की। आपकी हेल्थ खराब दिशा में जा रही है, इसका पहला साइन होता है फैटी लीवर। ठीक है? All right, so this is what I wanted to talk about today. I think 15 minutes over, and comment me in, you can put in the comments, right? If you have any questions, or you can direct message me, DM me with your concern and whatever. And it was nice talking to you, and see you again next week. All right, bye bye.